পরিবেশ দূষণ রক্ষা পেতে প্রথমবারের মতো উত্তর পূর্ব ভারতে শুরু হতে যাচ্ছে বায়োডিজেল ও বায়োগ্যাসের ডিপো। পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে ইতিমধ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে জ্বালানি তৈল অন্যতম। পেট্রোলিয়াম ও ডিজেল থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া থেকে যেভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে বিকল্প হিসাবে বায়োডিজেল ও বায়োগ্যাস এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে ভারতে। এরই অঙ্গ হিসাবে বুধবার বদরপুর ঘাটের গ্লোবাল সিটি ভবনের মাওলানা ইউসুফ আলী কনফারেন্স হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাটনা থেকে আগত গোল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর নৌসাদ আলী। তিনি বলেন, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বায়োডিজেল ও বায়োগ্যাসের সম্মতি 2017 সালে দিয়েছে। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এইসব রাজ্যে পেট্রোলিয়াম ও ডিজেলের বিকল্প বের হয়ে গেছে। এতে গ্রাহকদের খরচা কম পড়বে, সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকবে বলে তিনি জানান। গোল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রাজু মিত্র তার বক্তব্যে বলেন, ভারত সরকার ধীরে ধীরে সমস্ত দেশে দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহার করবে। তিনি বলেন, আমাদের ঘরে খাওয়া থেকে শুরু করে বাইরে যাওয়া পর্যন্ত সবসময় জ্বালানির প্রয়োজন। এই জ্বালানি যাতে সুলভ মূল্যে হয় সেদিকে নজর রেখে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সানবার্ট সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সোহেল আহমেদ বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতে এই প্রথম বায়োডিজেল ও বায়োগ্যাসের ডিপো খুলতে যাচ্ছে সানবার্ট সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। অনুষ্ঠানে বিহার ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে সানবার্ট সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেন সানবার্ট সুপার এনার্জির অপারেশন ম্যানেজার জয়শ্রী দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোল গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের লিগ্যাল অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার মিলন পট্টনায়ক, আইনজীবী বাহরুল ইসলাম লস্কর প্রমুখ। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সানবার্ট সুপার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার আহমেদ হাসান। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক টাইমস, বদরপুর। 2018 আমরা মানে এলপিজি, বায়োডিজেল এবং বায়ো মানে এলপিজি এবং পেট্রোল এবং ডিজেলের মধ্যে আমরা কাজ করছি। এই কাজ করাতে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জেবল যে জিনিসটা লাগছে আর যেন এই যে ডিজেল এবং পেট্রোলের যে মার্কেটটা আছে এটা বেশি দিন এই মার্কেটটা থাকবে না। এই মার্কেটটা কিছুদিন পরে এটা বেনিশ হওয়ার দিকে আছে। যে কারণে আছে গভর্নমেন্ট যেভাবে ইথানলকে প্রমোট করছে, এই কারণ পেট্রোলের সাবস্টিটিউটটা হচ্ছে ইথানল। একদিন দেখা যাবে যে টোটালি আজকে প্রথম যখন আমাদের পেট্রোল পাম্পের মধ্যে পেট্রোলের সঙ্গে গভর্নমেন্টের অর্ডার ছিল যে 10% আপনাকে ইথানল মিক্স করতেই হবে, এবং এই 10% মিক্স করা পেট্রোল আমাদেরকে কিন্তু গভর্নমেন্ট দিয়েছে। আজকে আমরা গভর্নমেন্টে 20% ইথানল মিক্স পেট্রোল সাপ্লাই করে। নীতিশ গাডকারি সাহেব উনি যখন এসেছিলেন, ওনার যে লাস্ট যেটা ওনার মিটিং ছিল, উনি মিটিং এটাই বলেছিলেন যে উইদিন 2 to 3 ইয়ার্সের ভিতরে 100% আমাকে ইথানলকে নিয়ে আসতে হবে। 100% যখন ইথানল আমাদের কাছে আই যাইব, তখন আইগলে দেখা যাবে যে পেট্রোলের সাবস্টিটিউট হয়ে গেছে আমাদের অলরেডি ইথানল। সেম এইভাবে আজকে যে ধরনের বায়োডিজেল প্রতিটা অয়েল কোম্পানি, ইন্ডিয়ান অয়েল বলুন, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম বলুন বা ভারত পেট্রোলিয়াম বলুন, প্রতিটা কোম্পানি বা নায়রা এনার্জি বলুন, সবাই আজকে কিন্তু ইথানল সবাই আজকের দিনে বায়োডিজেল পারচেজ করছে। তার রিজনটা এটাই যে ডিজেলের সাবস্টিটিউট ধীরে ধীরে হলে আপনাকে কিন্তু বায়োডিজেলকে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে। তো আমাদের যে কনসেপ্টটা হচ্ছে যে বায়োডিজেলটা অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলো আমাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আবার মানুষের কাছে বিক্রি করবে। আমরা ডাইরেক্টলি যদি এটাকে বিক্রি করে দিই, তাহলে মানুষ এটাতে অনেক উপকৃত হবে এবং অনেক কম রেটে কিন্তু ডিজেলটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা গোল বায়োলের সঙ্গে আজকে আমাদের এমইউ সাইনিং হয়েছে, এবং এই এমইউ সাইনিং এর আমাদের টোটাল কনসেপ্টটা হলো as early as possible আমাদের টোটাল নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার ভিতরে আমরা 100 পেট্রোল পাম্প লাগাবো, যেখানে আমাদের বায়োডিজেল থাকবে, সিবিজি থাকবে এবং আমাদের পেট্রোল থাকবে। এটাই আমাদের, এবং আমার সঙ্গে আমাদের ইবি থাকবে। এবং ভেরি রিসেন্টলি উইদিন 2 মান্থসের ভিতরে আমরা 5টা পেট্রোল পাম্প আমরা কিন্তু বরাকবিলিতে স্টার্ট করবো বায়োডিজেলের, এবং এটা হবে নর্থ ইস্টের ফার্স্ট পেট্রোল পাম্প হবে যেটা বায়োডিজেলের পেট্রোল পাম্প। এবং এই ফার্স্টটা কিন্তু আমাদের বরাকবিলির মধ্যে ফার্স্টটাই কিন্তু আমাদের বরাকবিলিতে হবে। নর্থ ইস্টের মধ্যে ফার্স্ট বায়োডিজেলের পেট্রোল পাম্প বরাকবিলিতে হবে। এবং আমাদের যখন পর্যন্ত আমরা যে এরিয়াকে সিলেক্ট করেছি, আমাদের ডিপুটা হবে কিন্তু হালাইন বুরঙ্গা বলে একটা জায়গা আছে, এখানে আমাদের কিন্তু ডিপু হবে, আমাদের স্টোরেজ ডিপু বানাবো আমরা। এবং এই ডিপুর সঙ্গে আমাদের একটা পাম্প হবে, একটা পাম্প আমাদের কিন্তু আমাদের NH-37 হবে, করিমগঞ্জে হবে, দুটো আমাদের হাইলাকান্দিতে হবে, এবং একটা আমাদের কাঁচা ডিস্ট্রিক্টের যেটা হচ্ছে আইজল রোডে হবে। এই টোটাল 5টা আমরা এখন পর্যন্ত আমরা স্টেপ নিয়েছি। আশা করি আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা থাকলে এটা আরো অনেক বাড়বে, এবং আপনাদের যদি প্রচার থাকে আমাদের সঙ্গে, আমরা এটাকে অনেক আগে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো। बायोडीजल एक्चुअली इसमें सल्फर जो है 0% सल्फर होता ही नहीं, और कार्बन जो कंटेंट 80% कम होता है डीजल से।
तो कार्बन अगर आपका कम रहा और सल्फर कम रहा तो हमारा वायुमंडल में इसको हम लोग बोल सकते हैं इको फ्रेंडली, यानी पोल्यूशन ये कम करेगा। ये पक्का पोल्यूशन कम, ये रिसर्च किया हुआ। आप हमारी रिफाइनरी में आएगा, रिफाइनरी का हमारा उद्घाटन है आपको 20 दिसंबर 2023 को हम लोग उद्घाटन देकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उद्घाटन कर रहे हैं। पे हो रहा है ये ब्रह्मपुर एक जगह है, छोटा सा जगह, सब देखे होंगे। हाँ, मित्रा साहब भी गए, बेंगल का नहीं नहीं बिहार का। और उस छोटे जगह पे लगभग फॉरेन से लोग भी आ रहे हैं और देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं। दुबई भी मैंने गया था, तो दुबई में मैंने एक प्रपोजल दिया वहां पर। वो प्रपोजल दिया कि वेस्ट प्लास्टिक से डीजल निकाल देगा। तो देखिए वेस्ट प्लास्टिक से डीजल जो है निकाला जा सकता है, और एक यूनिट भी मैंने डाल दिया है। वो प्रैक्टिकली मैंने ये डाला कि आप आओ भाई देखो मैं डीजल निकाल रहा हूँ, लेकिन वो डीजल निकलता है आपका ब्लैक टाइप का, रेडनेस टाइप का है, लेकिन उसको हम लोग व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, कुछ केमिकल उसमें डालते हैं, डालने के बाद डिस्टिलेशन कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपका सल्फर ज्यादा रहता है, तो सल्फर को रिमूव किया जाता है। वो भी रिमूव करने का हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो कि रिमूव करके 10 ppm पे ला देना है, यानी 10 ppm प्योर डीजल पे ला रहा है। तो पहली चीज है कि प्लास्टिक जो है आज तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपका जितना भी कचरा आ रहा है वो कचरा पे 35% जो है प्लास्टिक ही है। 35% प्लास्टिक होने की समस्या है। अगर खेतों में डाल दीजिए तो खेत बंजर हो जाएगा, तो आखिर यूज करें तो कहाँ करें। तो उसमें देखिए दो फायदा होता है, जो प्लास्टिक से हम लोग जो डीजल निकाल रहे हैं, एक तो डीजल निकल ही रहा है, और एक जो सबसे गाढ़ा उसका पदार्थ आएगा उससे रोडवेज बनेगा, जिसको हम लोग डामर बोलते हैं। अगर डामर जो है 50% और 50% मिक्स कर दें और रोड बनाए तो रोड बहुत बढ़िया बनेगा आपका। दूसरा कार्बन का कुछ आपका डस्ट आता है कार्बन का, तो हम लोगों ने एक मशीन डेवलप किया है। वो मशीन डेवलप की है, लगभग 5 लाख का मशीन आएगा। उसको पीकेट जैसे वो बांध देता है ऐसे कोयले की तरह। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपका 5600 से 6400 है कैलोरीफिक वैल्यू। जो ईट भट्टा आपने देखा होगा जो ब्रिक्स बनाता है रेड ईट, उसमें डाल करके वो रेड ईट बना रहा है। वो अगर कोयला जो खरीदने जाता है मार्केट में, तो उनको कोयला मिल रहा है 12 रुपया से 13 रुपया केजी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 रुपये केजी दे रहे हैं, तो आसानी से दौड़ के आके ले रहा है। और हमारा जो है कार्बन जो पार्टिकल जो कार्बन डस्ट निकल रहा है वो भी चला जा रहा है, और जब वो अंदर जा रहा है जल जा रहा है, तो जलने के बाद वो बिल्कुल आपका वो राख टाइप का हो जाता है। अब वो जो है उसको खेत में भी डाल दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो खाद का काम करेगा। 1 एकड़ जमीन में किसान अगर उगाना चाहेगा तो कितना खर्चा आएगा और उसका मुनाफा क्या होगा? देखिए 1 एकड़ में हमने पूरी सर्वे किया है। अब सर्वे रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं तो आपको जरूर देता, लेकिन 1 एकड़ में 1,80,000 से 2 लाख तक जो है किसान को हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे पैसा, ये गारंटी पत्र देंगे अगर ढंग से आप खेती करें तो। ढंग से खेती करने का मतलब ये हुआ कि उसमें देखिए ना आपको कोई खाद डालना है ना कुछ डालना है, केवल समय पे सिंचाई कर देना है, थोड़ा बहुत सिंचाई महीने में 1 बार। और उसके बाद ये जो ग्रास आती है ये गाय और भैंस ये खाते हैं, और ये खाते हैं तो सबसे सुखद बात है कि उनको दूध बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है। अभी एक हमारा मित्र आशीष जो है अभी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, और वो नेपियर का ही कार्य कर रहा है। और नेपियर जब देखिए बिहार में मैंने कॉन्सेप्ट लाया है, मैं एक अपना पहला प्लांट खोल रहा हूँ, हर जिले में एक प्लांट खोलेंगे, पायलट प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट के साथ। अभी उद्योग मंत्री से हमने मिला, उद्योग मंत्री बोले हैं, चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी अभी एक कॉन्सेप्ट लाया कि आप जो है सीबीजी प्लांट डालिए और हम आपको 5 करोड़ की सब्सिडी देंगे। तो 5 करोड़ तो सब्सिडी मिल जा रहा है आपका। दूसरी आपका एक सब्सिडी मिल रही सेंट्रल गवर्नमेंट पर टीपीडी 1 करोड़ दे रहा है पर टीपीडी। अगर मान के चले 32 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लगाया, 32 करोड़ में 5 करोड़ तो हमारा एक सब्सिडी मिला। दूसरा जीएसटी आपका 32 करोड़ का, 32 करोड़ में अकाउंट आपका जीएसटी का होगा, जो एसजीएसटी होगा वो एक अलग मिलेगा। तीसरा सब्सिडी पर टीपीडी जो गवर्नमेंट आपको दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 6 टीपीडी का लगाया तो हमारा 6 करोड़ होगा, 6×5 11 करोड़, और उधर जो 32 करोड़ का, यानी कि ऐसा हो गया है ये प्रोजेक्ट आज के डेट में 100% जो है सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हो। अब बशर्ते कि उस प्लांट को रन आपको ढंग से कराना है, और किसान भी जो है खेती अच्छी ढंग से करे तो उनका भी जो है, अगर 10 एकड़ जो पहले खेती नहीं करते थे 10 एकड़ में खेती करने लगे तो कितना होगा, 20 लाख इनकम होगा, तो उनकी रुतबा तो कुछ बदल जाएगी ना, उनकी तो रुतबा निश्चित बदलेगी। जहां किसान जो बंजर छोड़ देते थे और वो बंजर भूमि में 20 लाख उत्पादन होने लगे,
तो क्या होगा, उनका तो रुतबा बदलेगा। तो देखिए फैक्टर हम लोग का क्या है कि कृषि प्रधान हमारा देश है। यहाँ गांव का संख्या आपका 5,000 है, सॉरी शहर का संख्या 5,000 है, और गांवों का संख्या कितना है, 2.5 लाख है। अनुपात लगाइए, हमारा कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है। तो हम लोग तो बेसिकल उसी पे जाना चाहिए कि अपना जितना हम लोग का कोशिश हो रहा है, कोशिश करें और अवेयरनेस करें। एक से कड़ी 2 जोड़ता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, 16 से 32 होता है, ये ऐसे संख्या बढ़ते जाता है। तो एक अच्छा चीज है, अगर आज हम जो आयात कर रहे हैं तेल को, मंगा रहे हैं कहीं से, कल हम खुद निर्भर इसमें हो जाए तो इमेजिन कीजिए कैसा होगा। तो हमारा देश जो है उन्नति करेगा, और उन्नति ऐसा कर लेगा। आज हम लोग एनर्जी पे देखिएगा कि हम लोग कितना पैसा इकट्ठा करके विदेश में फेंक आते हैं, और वो पैसे अगर हमारे पास रह जाए तो हमारा देश कितना उन्नति करेगा। तो इसमें देखिए अवेयरनेस की जरूरत है, और हम लोग अवेयरनेस करें और इससे आगे बढ़े। आज हम आए हैं, सुहेल साहब को इसलिए पकड़े हैं, सैंडबर्ड को इसलिए पकड़ा कि सैंडबर्ड जो है कैपेबल है नॉर्थ ईस्ट के लिए। मुझे कोई नहीं जानता है, इनको जानता है, तो इनके पीछे पीछे रहेंगे तो हमको भी लोग जान जाएगा। और साथ साथ ये भी यही है, तो हम लोग जो है मिल करके जो है एक नया आयाम यहाँ पर खड़ा करेंगे, और किसान भी को भी फायदा है। जैसे एक हमने पंप खोला तो लिखा है स्पेशल किसानों के लिए 5 रुपये छूट डीजल पे। सर 5 रुपये छूट डीजल पे आप मायने रखते हैं, 5 रुपये छूट मायने रखता है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, डीजल कैसे बना रहे हैं। एक तो और हम लोग सुखद काम कर रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं कि जो तेल तल रहा है, आप कभी होटल में गए हैं, पूछे हैं सर आप ये चिकन तल रहे हो कितना बार तला है, इसमें भी तो अवेयरनेस होना चाहिए ना। आप वो चिकन खा रहे हैं, आपको ऐसा मसाला वसाला डाल दिया, डाल करके आपको खिला रहा है, खाए जा रहे हैं, टेस्टी लग रहा है, लेकिन आप ये सोचे हैं कि हमारा लीवर फैटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्टली देखिए जो शराब पीता है उसको जो है फैटी लीवर होता है। आज बिना शराब पिए लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, आज आपका फूड जो है अब हाइजेनिक नहीं रहा, उसमें पॉइजन आ गया है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग ऑथराइज कर रही है, हम लोग को ऑथराइज कर रही है। सुहेल साहब इसको करेंगे, हर होटल में छापामारी करेंगे, और छापामारी करके बोलेंगे कि ये जो आप तेल जो है हम मीटर डाल रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ये तेल जो है गड़बड़ है तो महीने में कितना दोगे। वो भी डेटा इनको कलेक्ट नहीं कर रहा है, डेटा तो आपका ये देगा, फूड इंस्पेक्टर देगा, कमिश्नर देगा कि कितने होटल है, कहां से कितना कलेक्ट होगा। ये वहां करके और 25 रुपया से 40 रुपया में खरीदेंगे, और खरीद करके वो ला करके अभी HPCL कंपनी जो है वो एक टेंडर दिया है कि अगर आप जो है तला हुआ तेल अगर हमारे पास बेचते हैं तो 72 रुपये केजी देंगे। तो खैर हम लोग HPCL को बेचना नहीं है, हमारा तो खुद रिटेल आउटलेट है, हम लोग 2 रुपये सस्ता दे रहे हैं, तो आम आदमी के भी उससे लाभ है, उससे आम जनता को भी लाभ हो रहा है कि 2 रुपये भाई सस्ता है। एक ट्रक ड्राइवर मान लीजिए खाना खाता हो 200 रुपये खाता होगा, अगर सपोज कीजिए कि 200 लीटर लिया तो 400 तो बचा, तो जेब में आ गया, तो खाना तो कम से कम पैसा निकल गया उसका। तो ये हम लोग मुहिम चलाए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में इनके साथ जुड़ने का हम लोग का वही मुख्य उद्देश्य रहा है।